15-20 साल पहले की बात होगी। मैं एक बड़ी एजेंसी में ऑटो अकाउंट पे काम करता था और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि एक रेसिंग टीम का, जो अमेरिकन रेसिंग टीम और बाइक की रेसिंग टीम थी, उसका एक लोगो बनाने का था। तो मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा बिकॉज फिर उससे कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो डैश रेसिंग समझ लीजिए, डैश रेसिंग कोई भी नाम हो सकता है। तो और ये जो कंपनी थी मोटर बाइक इंडिया में लॉन्च कर चुकी थी और वो अमेरिका में ले जाने के लिए उसको हम सोचा कि रेसिंग, वहाँ की किसी रेसिंग टीम को स्पॉन्सर करेंगे। तो हमें जो प्रोजेक्ट मिला, मैं क्या कहते हैं, वो रेसिंग का, जो बाइक रेसिंग का लोगो बनाने का, काफ़ी प्रेस्टिजियस था और काफ़ी तो सारी टीम ने काम किया। Thankfully, I was not, directly involved in that, but yes, जो हमारे ग्रुप के दूसरे लोग थे और it was getting supervised by somebody else. तो लोगो बन गया और ढेर सारे लोगों के जो भी है, फिर बाद में वो अप्रूव भी हो गया और उसके जा करके वो बाइक के ऊपर भी लग गए। और लेकिन जब वो रेसिंग हुई तो फिर बाद में देखा कि वो लोगो जो है हूबहू किसी और दूसरी रेसिंग कंपनी का है। So you could imagine what could have happened. There was because it was global aligned advertising agency. So there was a huge cry worldwide, and then the client says, "This is not fair," and of course it was not fair. So then I think other company had sued this company, and there was lots of blood boil and anger and lots of cases. And the guy who has done, he lost his job, and I think finally they have settled with I believe few crores of rupees. So दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करते हैं और उसी तरह का काम पहले हो चुका होता है। दैट इज कॉल्ड कॉपीइंग, एंड हाउ डेंजरस इट इज एंड हाउ पेनफुल इट इज। और ये जो है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया एज अ बिजनेस ओनर, तो ये आपकी पूरे कंपनी को फिनिश कर सकता है, कैन डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लोगो थीफ. Be very, very wise and very attentive listening this video, because this is going to help you a lot. So come here in the story called Logo Thief. हाँ, तो दोस्तों, लोगो थीफ ये जो वीडियो है, इसमें मैं थोड़े एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे ये सिमिलर लोगो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। और अगर आप छोटी कंपनी हैं तो आप सच में डूब सकते हैं। तो और पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि ऐसा क्यों है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। तो जैसे देखिए कि एक क्वार्क टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने काफ़ी धूम धड़ाके के साथ कुछ साल पहले अपना लोगो लॉन्च किया कि आई थिंक अराउंड 2012 के आसपास की बात है, कि इट्स अ फ्रेश इनोवेटिव अदर थिंग, एंड यू कैन सी देयर इज अ ट्रेडमार्क ऑल्सो. But then there was another Scottish Arts Council, and if you see, both logo except the color, it's the same. But they settled, and Quark was wise enough to change the logo, and but it was a painful exercise for them. And another company, NBC and ETV, is if you see, except the color, the cut and all the composition of the logo is the same. So they find this was the new logo and this was the existing ETV network, and they
again has to get to the beater suit and other things, and finally they settled the issue out of the court. And Formula One, that so this court is this case is still on. Formula One is a car racing company and it's a huge business. When they relaunch with the Formula One, there's not a bad logo. If you see FN1, so Formula One, and also the racetrack and all this, it sounds appropriate. But unfortunately for them, there was another company which already very similar. This case is still on, and the Formula One is still using this logo. And Starbucks is American coffee company, I'm sure all of you know. And then when they launched in the South Korea, there was another company, Star Korea Coffee, and there was lots of bitter suit was going on. But since Starbucks was not known in Korea that time, that's why that court gave an order in favor of this, and court is, I believe, the case is still going on. So I mean, you can imagine if you are a small company going through such painful exercise, anyway. Doing and finalizing the logo is an exercise itself, and it takes lots of pain and understanding and money, of course. So so why to go all through this? And and what it happens, there are two reasons for this. One, there is a difference between inspiration and stealing. So sometimes, if your designer or a graphic designer, an agency is not very careful and also not very experienced, and nowadays every referencing is available on Google or the net. They go there and they're thinking, what client will know about that is the stealing. And what happens on the inspiration, every similarity is not deliberate. ये जानबूझ के ये कई अक्सर नहीं होता है. क्या होता है कि हम लोग कई चीज़ों को देखते रहते हैं, जहाँ क्रिएटिव स्टफ हो रेफरेंसिंग के लिए, इधर कभी ये बुक देखी कभी वो देखा, और ढेर सारे इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में आते रहते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है. कई बार कोई चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलते कि वो हमारे मेमोरी के स्टोरेज में है. और उसी तरह का जब कोई हमें ब्रीफ या उस तरह की कोई जो प्रोजेक्ट जब हम मिलती है, तो वो जो हमारे ब्रेन में जो स्टोर वाला है वो अपने आप निकलने लगता है. दैट इज द वंडरफुल पावर ऑफ ब्रेन. समटाइम्स यू डोंट नो, बट व्हेन those things, the same situation happens, same creative brief happens, that thing, pops up. So many times you don't know that you are copying somebody, और आप वैसा ही काम कर रहे हैं जानबूझ के, लेकिन वो जो है सेम सोल्यूशन जो है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर्ड है, तो वो निकल के बाहर आ जाता है. I mean, it happens unknowingly, but problem is a problem. So what is the solution? तो आपको क्या करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए? So there are few things. अगर आपने वो स्टेप अपनाया तो वो ये आपके लिए अच्छा रहेगा. तो सबसे पहले है कि जब भी आप किसी को ग्राफिक डिजाइनर को आप कुछ लोगों के या कोई भी क्रिएटिव पीस का आप काम दे रहे हैं, तो उसको एक ब्रीफ दे. बिकॉज लोगो ब्रीफ क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी अलग होगी दूसरों से. तो कई क्लाइंट कई लोग क्या करते हैं, और मुझे भी कई बार ऐसा जो है कि बोला गया है, वहाँ गूगल से कोई भी रेफरेंस निकाल के अच्छा मुझे ऐसा लोगो चाहिए, और चूँकि अभी मुझे एक रेफरेंस मिल गया है और मुझे मालूम है क्लाइंट को क्या चाहिए, तो कोशिश होती है कि वैसा ही बना के दूँ. तो आप उसको रेफरेंस मत दीजिए, या ये मत बोलिए कि मुझे ऐसा ही लोगो चाहिए, आप उसको ब्रीफ दीजिए. अच्छा, व्हाट इज द लोगो ब्रीफ?
कि मेरी जो है ये कंपनी है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है और इस तरह की है। और दूसरा है कि अभी जब भी आप डिज़ाइनर आपको प्रेजेंटेशन दे तो आप उसको पूछिए प्रोसेस क्या है, हाउ यू हैव अराइव दिस, व्हाट इज द इंस्पिरेशन। जैसे कि आपने ब्रिटिश पेट्रोलियम या ब्रिटिश गैस के लोगो देखी होगी तो वो फायर से आया है, so many times we take logo and from the inspiration। तो वो एक प्रोसेस जो है, you need to ask the designer to tell me the process how you have arrived, then it will be easy because every process cannot be the exactly same। And third, when he presents to you, you have to research yourself। नेट पे जाके देखिए, कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, और कैसे कोशिश मतलब कि रिसर्च के भी तरीके होते हैं। जैसे उसने अपने लोगो में राउंड यूज किया है तो यू गो एंड सर्च लोगो विद द सर्कल और राउंड लोगो। अगर ट्री यूज किया है तो आप देखेंगे कि ट्री से सैकड़ों लोगो है, तो लेकिन आपको वो देखना है कि एग्जैक्ट नहीं है। और चौथा है कि अगर आप स्टार्टअप हैं और आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो आपको अपने लोगों की ट्रेडमार्किंग करानी चाहिए। तो ट्रेडमार्किंग के समय भी आपको पता चल सकता है किसी और का है या नहीं, बिकॉज ट्रेडमार्किंग वाले भी थोड़ी रिसर्च करते हैं। तो आप ये अगर ये 4 स्टेप जो आपने अपनाया तो शायद इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बच सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डोंट नो, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है गूगल में भी नहीं आपको मिलेगी, रिसर्च करने पे भी हो सकता है नहीं मिलेगी। और इतनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे दे डोंट इवन, अगर वो डिजिटल नहीं है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, तो हो सकता है। बट लेकिन लाइफ बहुत सारी ईजी हो जाएगी, आप और इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपकी लाइक कंपनी भी बचेगी और बहुत सारे आपके पैसे तो बचेंगे ही। तो कैसा लगा आपको ये मेरी स्टोरी लोगो थीफ? और आप जरूर इस पे ध्यान दें। और इसलिए और आजकल ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है कि ढेर सारे लोग किसी जैसे फाइवर हो, अपवर्क हो या फ्रीलांसिंग साइट्स हो या बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, उनको क्या उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है। और एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कि उतने सारे यू शुड हैव अ नॉलेज कि आपकी कैटेगरी में अगर मान लीजिए आप फूड पे काम कर रहे हैं तो यू शुड हैव इनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि व्हाट हैज बीन डन, सो दैट आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और इसलिए आपको अगर आप क्लाइंट हैं और ये वीडियो को सुन रहे हैं तो आप कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे लोगो 2 दिन में दो, 3 दिन में दो। आप भी रिसर्च कीजिए और अपने ग्राफिक डिजाइनर को भी बोलिए कि भाई इस कैटेगरी में आज तक जो लोगो है आई वुड लाइक टू सी ई। एंड जो एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं वो भी एक जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कैटेगरी उस सिमिलर में क्या लोगो या क्या क्रिएटिव हुआ है। दूसरा ये भी पता चल जाता है कि कंपटीशन जो है क्या कर रहे हैं। तो आपको हमेशा कंपटीशन का उल्टा करना चाहिए। अगर आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है उसने सर्कल किया है लोगों में तो आपको सर्कल यूज नहीं करना चाहिए। तो ये एक जो छोटा दीज आर द स्मॉल टिप्स जो आपको हेल्प करेगा। और इसलिए खासकर लोगो डिज़ाइन और आज के नेट के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में ये थोड़ा सेंसिटिव और थोड़ा केयरफुल आपको इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये हर जगह नेट पे फैल जाता है और विद इन अ सेकेंड इट कैन गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पहले क्या होता था, प्रिंट में था, अगर मैं मुंबई में कोई क्रिएटिव कर रहा हूँ तो शायद अमेरिका वालों को पता भी न चले। लेकिन चूंकि इंटरनेट की वजह से ये जो है ना, इसका स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हो गया है, तो आपको खासकर लोगो डिज़ाइन के बारे में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल because that is the main thing of your like a beginning of your branding। and उसको चेंज करना काफ़ी
मुश्किल का काम है, मुश्किल इन द सेंस कि काफ़ी पैसे का काम है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक स्टेशनरी पे, हर एक लीगल पेपर पे भी वो लोगो जाता है। तो इमेजिन, लोगो डिज़ाइन तो एक चीज़ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी कॉस्टली होती है। तो इसलिए आपको हमको इस चीज़ में थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, और जो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, सो आपको जैसा कि मैं बताया, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो लोगो थीफ कैसे यू कैन अवॉइड, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो भी, और अगर आप क्या कहते हैं क्लाइंट है तो भी, यू फॉलोइंग दिस प्रोसेस, you should avoid any basic logo. Your company is the emotional thing, and it's better कि it's a original, unique होना चाहिए। ब्रांडिंग की जो थियोरी है यही तो है ना कि यो एवरी ब्रांड इज अ यूनिक, व्हाट इज द सो, और आपका लोगो भी हो सकता है। आई नो देयर सो मच क्रिएटिव वर्क हैज बीन डन, सो मच लोगो हैज बीन डन, that it will take some effort to be different, it will take some time to be different, and that's why अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, और क्लाइंट हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस डूब सकता है। किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को आपने 10,000, 20,000, 25,000 आपने दिए, वो और आप पे करोड़ों का कि जो शुरू किसी ने किया है, तो कैन नॉट गिव यू करोड़, हाउ कैन यू कहाँ से देगा वो? अगर सब कुछ बेच देगा फिर भी नहीं देगा। तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, और इस तरह से, ताकि आप अपनी कंपनी को डूबने से बचा सके। इसलिए एज अ डिज़ाइनर, एज अ client, don't be a logo thief, be original, put some extra effort, put some extra money, because that's very important for you. So हमारा कैसा लगा आज का लोगो थिफ स्टोरी, और आप हमारा चैनल देखते रहिए, और ज़रूर इस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो भी अपने को जो घाटे से अपने को बचा सके। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे। और हाँ, ये लोगों के साथ नहीं, ये फिल्म के साथ भी होती है, और हम आपको कि एड फिल्म में कैसे कई बार आई नो सम स्टोरी जहाँ पे 8-10 करोड़ का जो सेटलमेंट हुआ है, तो उस बारे में मैं भी कभी बात करूँगा। तो सी यू